My dear students, you are watching Brain Master Spoken English. In this lesson, I shall teach you some dialogue. You like to express yourself fluently, then you should follow the dialogue. These dialogues are written by Webster in his drama The Duchess of Malfi. But remember, at first I shall give you the root dialogue of Webster, then I shall make it a paraphrase that you can understand it. It is the process of learning to make yourself smart. Now, first, look at the sentence. Cardinal, we are parting from you, and your own discretion must now be your director. Here, discretion. He has written discretion. Discretion means judgment. If we make the paraphrase of this, अगर हम इसका paraphrase करते हैं, फर्स्ट देखिए, वी आर पार्टिंग फ्रॉम यू. अगर हम पूरा पैराफ्रेज कर देते हैं, ऐसा होता है, वी हैड टू पार्ट फ्रॉम योर नाउ. योर ओन जजमेंट शुड बी योर गाइड नाउ. Here, remember one thing, you look at this, we are parting from you, that means we have to part from you now. अभी हम आपसे जुदा हो जाएंगे. Your own judgment, your own discretion should be your guides now. तुम्हारा अपना जजमेंट जो है तुम्हें गाइड करेगा. अब समझ में आया कि किस तरह उसने कहा, फिर हमने पैराफ्रेजेस किसने किया, पैराफ्रेजेस किसने किया, किस तरह किया. Ferdinand, you are widow, you know already what man is, and therefore let not youth high promotion eloquence. This is the original dialogue from the Duchess of Malfi. पूरा यही बोला गया है. You are widow, यहां पर देखिए कोलन दिया गया है, because you should remember one thing, whenever you are speaking you should be careful why to use the colon, why to make the semicolon, how to use the comma. That means your language will flourish and the other person who is standing before you, he can understand it clearly. You are widow, here semicolon. Again you can see in the last of the sentence what man is. What man is. Here is this, it is also semicolon. That means you should stay here a long time, not more long, fraction of few seconds. And therefore let you not, ये लिखा गया, फिर not youth, comma, high promotion, comma, eloquence. It is the hyphen. Okay, if I shall make the paraphrase of this sentence, हम अगर इसका paraphrase करेंगे, note that you are widow. Now here, at first Webster say you are widow. Here I make a paraphrase. Note that you are a widow. You already know the real character of men, and therefore let not youth and exalted position or a flattering tongue of any of your choices attempt you to second marriage. Here अब देखिए, note that you are a widow. ये याद रखो कि तुम एक विधवा हो. You already know the real character of men. तुम जानती हो लोगों के हर कैरेक्टर को, एंड देयरफॉर इसलिए लेट नॉट यूथ एंड एक्सल्टेड पोजीशन. एक्सॉल्टेड पोजीशन का मतलब हाई पोजीशन, और ए फ्लैटरिंग टोन. हैव द यूज ऑफ ए फ्लैटरिंग टोन. वो टोन, वो बात जो धोखा देता है, उस पर यकीन नहीं करना. ऑफ एनी ऑफ योर स्वीटर्स, जो तुम्हें पसंद करने आएंगे, जिसको तुम पसंद करोगी. अटेम्प्ट यू टू अ सेकेंड मैरिज. अटेम्प्ट यू टू सेकेंड मैरिज, और दूसरा मैरिज को अटेम्प्ट करना है. कैर्डिनल बोलता है किस तरह, देखिए कैर्डिनल बोलता है, नो एनीथिंग विदाउट द एडिशन ऑनर, स्वे योर हाई ब्लड, स्वे योर हाई ब्लड इज द ओरिजिनल ऑफ द ऑथर. कितना बेहतरीन बोला. नो नॉट एनीथिंग, नहीं कुछ नहीं, विदाउट द एडिशन ऑनर, स्वे योर हाई ब्लड
स्वे योर हाई ब्लड, देखो इसके नीचे में एक इसमें अंडरलाइन किया हूं रेड लाइन में, स्वे योर हाई ब्लड, इसका मतलब तुम्हारा जो ब्लड है वो हाई ब्लड है, दैट मीन्स नबल ब्लड है। यू शुड नॉट स्वे अवे फ्रॉम दिस, अगर आपका नबल ब्लड है यू शुड नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं करिए, उसको उससे हटिए मत, नबल ब्लड में रहिए। यहां पर वो कहता अगर इसका हम पैराफ्रेज करते हैं, नो नॉर एनीथिंग व्हिच इज नॉट ऑनरेबल शुड गवर्न यू, फॉर यू हैव नबल ब्लड इन योर वेन्स, इसलिए कि तुम्हारे अंदर में नबल ब्लड है, तुम कोशिश करो इस ब्लड का इज्जत को रखने के लिए। नबल ब्लड, जो हाई ब्लड होते हैं वो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो अच्छे फैमिली के होते हैं, रॉयल ब्लड से तुम्हारे अंदर में। फिर फैडिनल, मैरी 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 यानी कि शादी करें, दे आर मोस्ट लग्जरियस विल वेट ट्वाइस, क्या मैरी शादी करा जाए, दे आर मोस्ट लग्जरियस विल वेट ट्वाइस, ये ओरिजिनल लाइन है किसका, वेबस्टर का, किस में, द डचेस ऑफ माल्फी में है। अगर इसका हम पैराफ्रेज करते हैं, डोंट थिंक ऑफ मैरिज बिकॉज दोज हु मैरी अ सेकेंड टाइम आर मोस्ट सेंसुअल, हाँ ये हो जाता है कि मोस्ट सेंसुअल, इसका मतलब है जो आदमी सेकेंड टाइम मैरिज करता है, शादी करता है, बिकॉज दोज हु, वो आदमी वो क्या है, वो एक सेंसुअल है, यानी कि लग्जरियस पर्सन है, वो चाहता है कि मैं शादी करूं, वो सेक्सुअल पर्सन है। ये है उसका पैराफ्रेज। कैर्डिनल जवाब देता है किस तरह, ओ फाय, ओ सेम, देखिए नीचे में उसका पैराफ्रेज लिखा, ओ सेम, कितनी शर्म की बात है। अगर हम फाय का इस्तेमाल करते हैं, फाय का मतलब है छी छी, फायर ऑन यू, तुम पर धिक्कार हो, ओ शेम, यहां पर कहा ओ सेम, फर्डिनेंड, देयर लीवर्स आर मोर स्पॉटेड देन लेबन्स शेप, यहां पर एक बहुत अच्छा सेंटेंस वेस्टर कह रहा है कि देयर लीवर्स आर मोर स्पॉटेड देन लेबन्स शेप। यहां पर दो बात याद हो, लीवर आर मोर स्पॉटेड, लीवर आर मोर स्पॉटेड का माने क्या है, इसका माने है लीवर वाज स्पॉटेड टू बी द सीट ऑफ सेक्सुअल पैशन, सच पीपल आर मोर लस्टफुल देन द स्पॉटेड शीप ऑफ लेबन। लेबन एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के अंदर में लेबन के जो शीप थे, जो उसको पालता था, वो उस शीप में सबसे ज्यादा सेक्सुअल प्रकृति के थे, वो थे स्पॉटेड, जिन पर दाग था। और जो लेबन शीप कहा, फिर कहा लीवर का मोर स्पॉटेड, वही मोर स्पॉटेड थे लेबन शीप। यहां पर लेबन शीप, लेबन टुक सर्विस विथ हिज अंकल on condition that all spotted lambs would be given to him as his wages। यहां पर लेबन जब अपने अंकल के यहां काम कर रहा था, वो कहा था कि जो स्पॉटेड होंगे, मोर स्पॉटेड होंगे, जो मोर लस्टफुल होंगे, सेक्सुअल शिप होंगे, वो मुझे आप मजदूरी के तौर पर दे देना। इतने बात को वेबस्टर ने एक लाइन में रखा, किस तरह रखा, देयर लीवर्स आर मोर स्पॉटेड देन लेबन्स शीप। ओके, डू यू अंडरस्टैंड है? द राइटर, दोज आर राइटिंग, जो लिखते हैं वो ये समझते हैं कि मैं इसके अंदर में कौन कौन से मैथोलॉजिकल कंडीशन को पेश करूंगा, हालात को पेश करूंगा, उस तरह वो कहते हैं। अगर आप डायलॉग देते हैं, कभी डायलॉग में आप ऐसा भी कहते हैं, आप राम की तरह बनिए, ऐसा कहते हैं। आप एक किसी भी प्रोफेट को इशारा करके कहते हैं, उनके बात को मानिए, यानी कि आपके डायलॉग में वो सब मौजूद हो जाते हैं और आप अगर ज्यादा जानते हैं। यहां पर हम उसे पैराफ्रेज करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोज हु मैरी ट्वाइस आर मोर लस्टफुल देन इवन द शीप ऑफ लेबान। इसका मतलब जो चाहते हैं
दोबारा शादी कर दें, वो बहुत ही लॉस्टफुल है, यानी कि डिजायरस है, सेक्सुअल डिजायर उनके अंदर में होता है, जो चाहते हैं कि मैं 2 शादी करूं, जैसा लेवान के शिप के साथ में होता है। लेवान खुद कहता है कि ये शिप को मुझे दे देना, किसको? अपने अंकल को कहता है। तो ये पैराफ्रेज, आई थिंक इट इज द वेरी फैंटास्टिक वे I have told here or described here. I delineate here, that I delineate here. You can catch it and you try to understand the meanings of the dialogue that has been written in the Duchess of Malfi. It is the most magical dialogue. It is not that you will use like this your person to whom you are talking, he can't understand. But remember, you should try to express yourself as the paraphrase I have given you here. I hope that you, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, आप मेरे चैनल में भी न्यू हैं, अगर देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूं जो आपके नॉलेज को फ्लॉरिश करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि यू विल लर्न इंग्लिश ओनली बाय गोइंग, व्हाट्स योर नेम, हाउ इज योर फादर, नो, हियर इज नॉट द इंग्लिश। आई से यू शुड लर्न डेप्थ ऑफ लैंग्वेज। आप डेप्थ को जाइए और डेप्थ से निकालिए क्या? वो खूबसूरत जेम्स निकालिए जो तुम्हारे लिए जरूरत है और यूज कीजिए अपने लैंग्वेज में। अगर आप समझ गए तो सब्सक्राइब कीजिए। बैठे क्यों हूं? थैंक्स अ लॉट।